پہلے آپ کو بتائیں میاں والی منگلہ ڈیم اور دریائے قرم سے آنے والا پانی کا رویلا دریائے سندھ میں پہنچ گیا ہے۔ پانی کی آمد میں اضافے کے باعث دریائے سندھ کے بہاؤ میں شدید تیزی آ گئی۔ جناح بیراج میں پانی کی آمد 4,40,000 کیوسک تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اخراج 4,37,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے اختر مجاز سے۔ جی اختر، اگر بات کی جائے چشمہ براج جناح براج میں اس وقت پانی کی آمد کے حوالے سے تو منگلہ ڈیم اور دریائے قرم میں پانی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے منگلہ ڈیم سے 2.5 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے۔ اس کے بعد دریائے قرم کا پانی جب ملا تو جناح براج کی اس وقت جو صورتحال ہے پانی کی، شیراز اقبال آپ کو اگر دکھا سکے تو یہ کالا باغ کا مقام ہے جناب، 4,40,391 کیوسک اس کی آمد ہے، اور اس وقت جو پانی ہے یہ بالکل بلیو نیلا جو کلر ہے یہ پانی آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ اگر شیراز اقبال دکھا سکے تو یہ میاں والی ہے، میاں والی میں پانی پہنچ چکا ہے اس وقت، اور اس وقت کندیاں کے مقام یعنی کہ چشمہ براج پہ اگر ہم بات کریں تو 3,70,604 کیوسک جو ہے پانی ہے یہاں پہ موجود ہے، اور اگلے 1 گھنٹے تک چشمہ براج پہ بھی جو ہے پانی کی آمد وہ لاکھوں کیوسک مطلب 4 لاکھ کیوسک کے قریب ہو جائے گی، کیونکہ ابھی پانی جو ہے راستے میں ہے اور وہاں سے گزر رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں، ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، تمام جو کچا کے مقامات ہیں وہاں پر ریسکیور تعینات ہیں، اس کے علاوہ ڈنگانے کا جو پپلا تحصیل پپلا میں علاقہ ہے وہاں پہ بھی ریسکیو کی ٹیمیں تعینات ہو چکی ہیں۔ اس وقت درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے متحرک ہے، اور یہی ہوگا انشاءاللہ کہ تمام تر جو ایمرجنسی کے معاملات ہیں ان سے نپٹا جائے گا، اور خدا نخواستہ پانی کی آمد میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو صورتحال جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ اختر مجاز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملک بھر میں جاری شدید بارشوں کی وجہ سے دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دریائے سندھ میں چشمہ کے مقام پر 1,32,000 کیوسک اضافہ دیکھنے میں آیا۔ چشمہ بیراج میں اس وقت نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ متعدد دیہات اور کچا کے علاقہ جات زیر آب آ چکے ہیں۔ کھڑی فصلوں کو شدید نقصان جبکہ کٹاؤ بھی شدت اختیار کر گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں عطا اللہ شاہین سے۔ جی عطا اللہ، حالیہ مونسون بارشوں کی وجہ سے دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں اضافے سے کچا کے متعدد علاقہ جات زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ علاقہ جات میں موجود کپاس، مونگی اور دیگر فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ دریائے سندھ میں پانی کی آمد سے کابل میں کچا گجرات اور ڈھنگانے میں کٹاؤ شدت اختیار کر گیا ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں ایکڑ اراضی دریابند ہو رہی ہے۔ یہاں پر اگر پانی کی صورتحال کی بات کی جائے تو اس وقت دریائے سندھ میں چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ چشمہ کے مقام پر پانی کی آمد 3,27,397 کیوسک جبکہ خراج 3,05,116 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جناح براج کے مقام پر پانی کا لیول 693 فٹ جبکہ چشمہ کے مقام پر 640 فٹ بتایا گیا ہے۔ اس وقت کے مطابق ملک میں شدید مونسون بارشوں کی وجہ سے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں ایک بڑا اضافہ متوقع ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو کی جانب سے سیلابی علاقوں کچا گجرات، ڈھنگانا، بھمبا والا میں ریسکیو ٹیمیں تعینات ہیں، اور سیلابی علاقوں میں متاثرہ شہریوں اور ان کے مال و مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ عطا اللہ شاہین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ لیا میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل۔ اے سی حارث حمید خان کا بستی زنگیزہ میں دریائی صورتحال کا معائنہ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بند کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر حارث حمید خان کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ہمیں بھی اضافہ ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ، تو ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ یار کہ مہربانی کر کے ہمارے اوپر بم نہ گرایا جائے کہ ہمارے لیے تھوڑا سا سفر سے لیے آسانی ہو جائے، مہربانی۔ گورنمنٹ سے تو ہماری یہ اپیل ہے تو ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کرے، اور تمام اشیاء جو گھروں اشیاء ہیں ان کو بھی کمی کرے، جو ہے نا عوام کو ریلیف دیا جائے۔ میرا ریگولر سفر ہے ڈی جی خان ملتان آنا جانے کا، روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں، تو پہلے کرایہ تھا کام تو وہ افورڈ کر لیتے تھے، اب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ کرایہ میں انہوں نے اضافہ کیا ہے، وہ ہماری پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔
शहर और गिरदोनवाह का मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, महसूस 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। महकमे मौसमियात की आज शाम के वक्त हल्की बारिश की पेशगोई। मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी राना बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद दिखाई दे रहा है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत की बात करते हैं तो मुल्तान शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो महसूस किया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है वो तकरीबन 39 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जा रहा है। इस वक्त मुल्तान शहर में जो है वो सूरज और बादलों के दरमियान भी आंख मचोली का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कहीं जो है वो मुल्तान शहर के इलाकों में हमें सूरज देखने को मिल रहा है, कहीं जो है वो बादलों का जो है वो आसमान पर राज दिखाई दे रहा है। इस वक्त अगर हम महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब की बात करते हैं तो इस वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 55% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 111 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह शाम के वक्त अगर हम मौसम की बात करते हैं तो शाम के वक्त महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई दी गई है। तकरीबन 5 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है वो हल्की हल्की बारिश का इम्कान है। मुल्तान शहर के कुछ इलाकों में बारिश होगी और कुछ इलाकों में बारिश नहीं होगी, जबकि आने वाले दिनों की बात करते हैं तो आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि अगले 2-3 रोज़ जो है वो बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया गया, जबकि उससे अगले आने वाले दिनों में तकरीबन इतवार से एक बार फिर से बारिशों का स्पेल शुरू होगा, जो तकरीबन 1 हफ्ता तक जो है वो बारिशें जारी रहेंगी। इस वक्त की अगर हम बात करते हैं मौसम की तो इस वक्त जो है वो हल्की हल्की शहर में हवा चल रही है, लेकिन हब्बस और गर्मी का जो राज है वो बरकरार दिखाई देता है। जी बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सरगोधा और गिरदोनवाह में तेज बारिश से जल थल एक, लेकिन मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं। सरगोधा और गिरदोनवाह में तेज बारिश हुई है। बारिश से जल थल एक, लेकिन मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं। शहरियों ने सुख का सांस लिया है। सरगोधा और गिरदोनवाह में तेज बारिश से जल थल एक, लेकिन मौसम खुशगवार। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। भेरा शहर और गिरदोनवाह में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, दरिया किनारे खड़ी मकई और जवार की फसलें मुतासिर। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। नवाही इलाकों में दरियाए जहलम की सतह आब में कमी। गुज़श्ता रात 1,36,000 क्यूसेक का रेला गुजर चुका है। मजीद बता रहे हैं नवीद जावेद। जी नवीद। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भेरा के नवाही इलाके गागा में, जहाँ दरियाए जेहलम की सतह आब में अब वाज़िह कमी नज़र आ रही है। महकमा मौसमियात और ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जारी करदा वार्निंग के मुताबिक यहाँ इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा दायर किया गया था। गुज़िश्ता रात यहाँ से 1,36,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है गुजर चुका है। ज़िला इंतज़ामिया ने रेड अलर्ट जारी किया था, जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है। दरियाए जेहलम के किनारे इन तमाम इलाके के मकीनों को भी हिदायत की थी कि फौरी तौर पर दरियाई किनारे से अपना कीमती सामान और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। इस वक्त दरिया जेहलम में 21,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। दरिया जेहलम के किनारे वाक़या खड़ी मकई और ज्वार की फसलें जो हैं वो मुतासिर हुई हैं, जबकि इलाका मकीन जो है अपने घरों की जानिब वापसी का सफ़र जो है शुरू कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया नवीद जावेद, आपने हमें अपडेट किया। खसरा के वार जारी। बहावल विक्टोरिया हस्पताल में खसरा के बायस एक और मुश्तबा हलाकत रिपोर्ट। हस्पताल में खसरा के बायस जाँ बहक बच्चों की तादाद 6 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अब्बास नगर से खसरा के 4 मुश्तबा बच्चे रिपोर्ट हुए। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना। बिल्कुल जी, बहावल विक्टोरिया अस्पताल और बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में खसरा की बात करते चलें तो खसरा के जो वार हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक और बच्चा जो है वो खसरा के बायस जाँ बहक हो चुका है। चन्नी गोट से इस बच्चे का ताल्लुक था, 4 माह की उम्र थी, और 12 जुलाई से ये बहावल विक्टोरिया अस्पताल के पीड्स 2 में ज़ेरे इलाज था। इस हवाले से जो हस्पताल ज़राए हैं वो यही बताते हैं कि खसरा के साथ नमूनिया अलामात जो हैं उनके बायस ये बच्चा जो है वो मुश्तबा तौर पर खसरा के बायस उसको डिक्लेयर किया गया। और अगर ओवरऑल बात करते चलें तो बहावल विक्टोरिया अस्पताल में ताहाल 9 बच्चे जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं खसरा के बायस। और अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करते चलें तो बहावलपुर के इलाका अब्बास नगर से भी 4 मुश्तबा केस जो हैं वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल
अस्पताल रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें एक 2.5 साल का बच्चा है, 3 साल का और 5 साल का बच्चा शामिल है। जबकि बहावलपुर शहर के इलाके बिंद्रा पुली से भी एक बच्चा जो है वो मुश्तबा तौर पर खसरा की अलामात के बायस अस्पताल में रिपोर्ट हुआ। इस हवाले से हमारी CEO हेल्थ डॉक्टर आमिर बशीर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि बहावलपुर में कहीं भी खसरा की स्प्रेड जो है वो मौजूद नहीं है। जहां पर मुश्तबा केस डिक्लेयर होता है वहां पर टीमें फौरी तौर पर मुतहरिक होती हैं और वहां पर जो टेस्ट है वो किया जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते चलें पिछले 2 माह की, तो बहावल विक्टोरिया अपडेट करने के लिए शुक्रिया ताहिर जोधियाना। आपको बताएं, मुल्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इजाफा हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि यार कि मेहरबानी करके हमारे ऊपर बम ना गिराया जाए कि हमारे लिए थोड़ा सा सफ़र से लिए आसानी हो जाए, मेहरबानी। गवर्नमेंट से तो हमारी ये अपील है तो डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी करे और तमाम एशिया जो घरों एशिया है उनका भी कमी करे, जो है ना आवाम को रिलीफ दिया जाए। मेरा रेगुलर सफ़र है डीजी खान मुल्तान आना जाने का, रोज़गार के सिलसिले में जाते हैं। तो पहले किराया था, काम तो वो अफोर्ड कर लेते थे, अब पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, जिसकी वजह से ये किराया में इन्होंने इजाफा किया है, वो हमारी पहुंच से दूर हो गया है। तकरीबन 300 रुपये लीटर बन चुका है, तो फिर साफ जाहिर है कि AC भी चलाना है इन्होंने, AC का भी खर्चा है, तो इसलिए ये किराया सही ले रहे कि वो जो फैसल मूवर है वो 950 रुपया ले रही है, उससे तो ये किराया कम है ना। मुल्तान में चीनी की कीमत में इजाफा, चीनी 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। साबिक लीगी सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद का कहना है कि चीनी की कीमत में इजाफा नहीं होना चाहिए। मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद। जी बिल्कुल, चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा और ओपन मार्केट में चीनी 200 रुपए तक फरोख्त की जा रही है, जबकि आम आदमी जो है वो कीमतों से मुतासिर हो रहा है। इस वक्त साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद राई हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। चौधरी साहब, चीनी की कीमतों में हालिया इजाफा, 200 रुपए तक ओपन मार्केट में चीनी फरोख्त हो रही है, आम आदमी जाए तो जाए कहाँ और अपनी आवाज़ उठाए तो उठाए कहाँ? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, बड़ी तकलीफ दे बात है। इंशाअल्लाह बीबी मरियम साहबा और वज़ीर आज़म साहब इस पे ज़रूर एक्शन ले रहे हैं और हमेशा की तरह वो इस बहरान पे काबू पा लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि हर सूरत में ये डिमांड भी है, पब्लिक की डिमांड है, आवाम की डिमांड है, ये बेसिक चीज़ है, बेसिक नीड है, जो शीरखा बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक की ये नीड है। तो इंशाल्लाह जल्दी गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल पा लेगी। हाँ जी बिल्कुल, साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी अब्दुल वहीद राई का कहना है कि हुकूमत चीनी की कीमतों पर जल्द जो है वो कंट्रोल पा लेगी और सरकारी सतह पर जो रेट्स मुतय्यन किए गए उन रेट्स पर चीनी मिलेगी, और वो समझते हैं कि चीनी बुनियादी ज़रूरत है, इसलिए इसके रेट जो है वो रिफ्लेक्ट करता रहता है। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। फोर्ट अब्बास HR कॉलोनी में पानी का पुराना तालाब वबाल जान बन गया। कब्जा माफिया भी मुतहरिक, तालाब के गिर्द गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी। मजीद जानते हैं मियां आमिर सुखेरा से। मौजूद फोर्ट अब्बास के चक नंबर 285 HR में एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से तहसील भर के कुछ गाँव को मॉडल बनाया जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए 285 HR की तो वहाँ पे सूरत ये है कि यहाँ पे बनने वाला जो टोबा था वो ऑलरेडी गाँव के लिए वो माले जान बन चुका है। हमारे साथ इसी गाँव के कुछ आराइशी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मसला है कि गाँव के घर गिर रहे हैं और पानी की निकासी नहीं हो रही। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ CM ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਟੋਭਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਰੂੜੀਆਂ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੀ 2 ਕਨਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 5-6 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ 2 बेवा औरतें से उन्होंने घर डिग गए। हमारे साथ मौजूद थे गांव के लोग जो बता रहे थे कि तकरीबन 3 साल से मुसलसल जो एप्लीकेशन दी जा रही है, पहले 3 साल पहले दी गई, 2 साल, फिर अभी रिसेंटली भी असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास को एप्लीकेशन दी गई, लेकिन महकमा माल की तरफ से एक दफ़ा विजिट किया गया, लेकिन कुछ भी यहाँ पे बेहतर नहीं हुआ। तो यहाँ पे साफ सुथराई करवाई जाए और जो निकासी का निज़ाम है उसे बेहतर किया जाए ताकि गाँव के लोग भी बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। जी
मुल्तान की कारोबारी बरादरी ने टैक्स कवानीन में रद्द-बदल और एफबीआर के इख्तियारात बढ़ाने के खिलाफ 19 जुलाई को हड़ताल की कॉल दे रखी थी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का एक दौर मुकम्मल होने के बाद आज दोबारा मुज़ाकरात हो रहे हैं। कारोबारी बरादरी की 19 जुलाई की हड़ताल का मामला टैक्स कवानीन में रद्द-बदल और एफबीआर के इख्तियारात बढ़ाने के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी गई थी। मुल्क भर की सनअती बरादरी आज फिर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना से मुज़ाकरात करेगी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का एक दौर पहले मुकम्मल हो चुका है। मुल्तान की ताजिर तंजीमों ने कल मार्केट मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान भी कर रखा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आज शाम होने वाली मीटिंग के बाद अपना फैसला सुनाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर की जो ताजिर बरादरी है और सनअती बरादरी है उसकी जानिब से 19 जुलाई को जो है वो हड़ताल का ऐलान जो है वो किया गया था, यानी कि आज 18 जुलाई है और कल 19 जुलाई और हड़ताल शुरू होने में सिर्फ अब 4 घंटे जो है वो बाकी जो है वो रह चुके हैं। तो इस वक्त हमने देखा कि कुछ रोज कबल भी जो मुल्क भर की जो ताजिर बरादरी थी और जो सनअती बरादरी थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वज़रान थे, उनकी वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात भी थी और उस मीटिंग में चेयरमैन एफबीआर भी जो है वो मौजूद थे। तो उस मीटिंग का भी कोई खास खुलासा जो है वो सामने नहीं आ सका था और उस मीटिंग के बाद हमने देखा कि जो कुछ ताजिर तंजीमें थी उनकी जानिब से जो है वो हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया गया था। जो एफपीसीसीआई है और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इंडस्ट्रीज के सदूर हैं उनकी जानिब से कोई वाज़ेह पॉलिसी बयान जो है वो सामने नहीं आ सका था। तो मुलाकात का एक दौर तो वहां खत्म हो गया, लेकिन आज एक और अहम मुलाकात जो है वो अब से कुछ ही देर के बाद, यानी कि अब से 20 मिनट के बाद जो है वो शुरू हो जाएगी और जनूबी पंजाब से जो नुमाइंदगी करेंगे वो मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर मियां बख्तावर तनवीर शेख जो है वो करेंगे। अब से कुछ देर कबल मेरी उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी अब से कुछ ही देर के बाद जो है वो एक अहम मीटिंग जो है वो होने जा रही है और अब देखना यह है कि इसमें जो है वो फाइनल जो है वो डिसीजन जो है वो लिए जाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ ज़राए जो हैं वो ऐसे ही बताते हैं कि लाहौर और कराची के जो सनअती बरादरी है उनकी जानिब से कल हड़ताल का जो है वो जायज़ रखने का ऐलान जो है वो किया गया था। हम आज की जो मीटिंग है जो कि अब से कुछ ही देर के बाद जो है वो शुरू होनी है, बल्कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद शुरू होनी है, ये बड़ी अहमियत की हामिल है और इसमें ही फैसला करना है कि क्या कल मुल्क भर में जो है वो हड़ताल होगी या फिर हड़ताल की कॉल जो है वो वापस ली जाएगी। तो टैक्स जी, मुल्क भर में हड़ताल होगी या फिर हड़ताल की कॉल वापस ली जाएगी, इस बारे में जल्द ही फैसला कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वासा मुल्तान की मुबैना नाअहली मुल्तान के शहरी पीने की साफ पानी से महरूम। सूरज मियानी पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से गैर फाल है। मजीद जानते हैं ऑन अब्बास से। आज बिल्कुल अगर बात करें तो मुल्तान वासा इंतजामिया की नाअहली के बाइस मुल्तान शहर के मुतद्दिद फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो गैर फाल हैं। सूरज मियानी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर पूरे इलाके में ये वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि अरसा दराज से गैर फाल है और आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल जो है ताला लगा हुआ है फिल्ट्रेशन प्लांट के सामने और अंदर गंदगी का मंजर आपके सामने वाज़ेह है और टूटियाँ भी अंदर से गायब हो चुकी हैं और इसका इफ्तिताह भी आप अगर देखें तो सामने इफ्तिताह की तख्ती लगी हुई है, जबकि फिल्ट्रेशन प्लांट जो है गुज़िश्ता कई सालों से जो है गैर फाल है। शहरी के हवाले से हमारे साथ जो है मौजूद हैं और इस हवाले से बात करेंगे। ये तो काफ़ी अरसे से ही तकरीबन ये बंद पड़ा है, इसको तकरीबन मतलब कई साल ही कह लो ये कब से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है और दूसरे जो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं वो काफ़ी हमें मतलब 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो इधर नज़दीक कोई फिल्ट्रेशन प्लांट ही नहीं है। इंतजामिया से क्या मुतालबा करें? इंतजामिया से ये मुतालबा है कि इसको जल्द से जल्द इसको ठीक करवा के दे दें ताकि हम लोग बासानी या पानी वगैरह भर सकें साफ़ सुथरा। यहाँ पानी का भी मसला है इलाके में। वासा इंतजामिया और स्पेशली MD वासा खालिद रज़ा साहब से मुतालबा है कि अपना ये यूनियन काउंसिल नंबर 53 सूरज मियानी का जो ये फिल्ट्रेशन प्लांट है जल्द से जल्द इसे अफाल किया जाए। शहरियों को, इलाका मकीनों को बेहद परेशानी का सामना हो रहा है और इस हवाले से इलाका मकीन जो हैं वो यही फरियाद कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव फिल्ट्रेशन प्लांट भी बहुत दूर है, पानी साफ पानी जो है इलाके में मुहैया नहीं, सीवरेज का निज़ाम भी इलाके में धर्म भरम होने की वजह से जो पानी पी रहे हैं घरों में आ रहे जहरीला पानी आ रहे, जहरीला पानी पीने पर मजबूर है। वासा इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है जल्द से जल्द इस फिल्ट्रेशन प्लांट को जो है दुरुस्त किया जाए। जी और अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जलालपुर पीरवाला में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आतिशज़दगी का वाकया, रेस्क्यू ने 6 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने से दुकान और स्टोर्स में 15 करोड़ का पड़ा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। ताजिर का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। लाला कोई पता क्या नहीं, सवेरे सा कोई बंदे आना के थोड़ी दुकान है बाहर लगी खड़ी है, असल दुकान से आए हैं छोटी आग लगी खड़ी है
वाल बंदे साकु तो होश कहनी हर बंदे बाप डालियां को फोन किते ओडे किते पानी बुझावन किते एसी कोल हर कहीं कोल बंदे दे फोन पहुंच गए। 1.5 घंटे के बाद इथु जलालपुर दी गड्डियां साडे कोल आन हुले लाखें दा नुकसान थिया कड़ा ओ जिवें गड्डियां पहुंचन एक गड्डी जो पानी कहना हा बई गड्डी जो पेट्रोल कहना जरा जनरेटर चले मैं पैसे दिते यार पेट्रोल घेना मेरी जायदाद सड़ी वेंदी है करोड़ रुपए का मेरा माल सड़ गए 15 मरले की मेरी दुकान है इतना शहर है मैं मशहूर हाल मदीना दुकान वाला आज अभी बुला लेकिन मेरी दुकान तले सड़ गई है उत्ते सड़ गए यानी 30 मरले मेरा एक चीज एक सोई दी जाके नहीं रखने की पूरी दुनिया जान दे मेरी के जी बड़ी दुकान है जलालपुर पीर वाला आज सारी कुछ मैं साड़ ते बैठा थिया बस अल्लाह ते तवक्को किती बैठा या मेरी मरियम नवाज ते कोशिश थे कि वो अपनी सारी वजीर आला ऐसा उन्हें वोटर थे वो सारी कोई इमदाद करे तो कर सकती है ना साढ़े को सारी जायदाद थी ना जमीन आले थे ना मिलके आले थे बाकी साढ़े मलिक लाल मन साहब उन्हें कोई आते पे राणा कासे में उनको भी आते पे कैसा गरीब लोग आसे सारी जायदाद मड्डी मुक गई है। क्या मुतालबा करें? मुतालबा साडे मरे नमाज साहब को साडा मुतालबा वजीर आला साडा नुकसान पूरा कर असा कित्थू आनू साडे बच्चों की रोजी है छोटे छोटे साडे बच्चे साडी बड़ी मुसीबत है असल तो रोंदे बैठे हैं तो क्या करे सू कर्जे लोग दे देवले कर्जे वाले पता नहीं क्या करे असा कित्थू बच्चों की रोजी सारी ये कुछ ज्यादा। मुल्तान के फ्लाईओवर्स पर लगी सेफ्टी तारें चोरी होने लगी। गिलानी कचहरी 9 नंबर रशीदाबाद फ्लाईओवर्स पर सेफ्टी तारें लगाई गई थीं। गिलानी फ्लाईओवर पर पोल्स भी चोरी हो गए। मजीद जानते हैं अहमद खान से। आज ही बिल्कुल मुल्तान के फ्लाई ओवर्स पर सेफ्टी जो तारें लगाई गई हैं जो पूल्स लगाए गए हैं वो जो है वो चोरी होने लगे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के गिलानी फ्लाई ओवर पर। यहाँ पर जो तारें लगाई गई थी सेफ्टी तारें लगाई गई थी वो जो है वो चोरी हो चुकी हैं और इसके साथ साथ जो पूल्स लगाए गए थे वो भी चोरी होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन जिला इंतजामिया और मुल्तान पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई नजर आ रही है। हमारे से बात करने के लिए शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे इन तारों के हवाले से। था कि लोग जा रहे होते थे गले कट जाते थे डोर आ रही है तारें नहीं लगी हुई थी। अब तो ये गवर्नमेंट ने तारें भी लगा दी थी। ये आवाम के जो पैसे हैं जितने भी हैं आवाम देती है टैक्स वगैरह हम टैक्स इसलिए पे करते हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए हो। जब तारें लगाई थी अब चोरी कर ली हैं। अब इसकी सेफ्टी साथ थाना जलीलाबाद लगता है। ये पुल लगे हुए थे ये गायब हो गए हैं। रात को पहले लाइट्स नहीं थी अब लाइट चलो लगा दी हैं इसकी सेफ्टी होगी आवाम के लिए। लेकिन ये तारें लगाई हुई थी अब इसके ऊपर भी तो एक्शन लिया जाए ना। ये पुल लगे हुए थे ये कहाँ गए हैं। हमारे से बात करने के लिए शहरी मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं ये जो तारें चोरी हो रही हैं हुकूमत ने सेफ्टी तार लगाई हुई थी वो चोरी हो चुकी हैं क्या कहेंगे इस हवाले से। सर इंतजामिया जो है वो सोई हुई है गफलत का शिकार हुई हुई है। जबकि यहाँ पे थाना कैंट लगता है थाना जलीलाबाद लगता है ठीक है। उन SHOs को या उन थाने वालों को चाहिए कि यहाँ पे जितने नशाई लोग हैं ये जो लोग चोरी कर रहे हैं ये हमारी सेफ्टी के लिए करोड़ों रुपए की मालियत है ठीक है। ये ज़ाया हो रही है चोरी हो रही है। अभी आप ये देख सकते हैं ये देखें ये पुल के ऊपर वाली जो लाइन है ये तक उखाड़ के ले गए यार। तो बिल्कुल ही इंतजामिया को कोई परवाह ही नहीं है। लोग उनको यहाँ से गुजरना नहीं होता। तारें जो हैं वो तमाम फ्लाई ओवर्स की जो है वो चोरी हो रही हैं और इसके साथ इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद जो है वो शहरियों ने भी यही कहा है कि करोड़ों रुपए की मालियत से जो तारें लगाई गई हैं वो जो चोरी हो चुकी हैं पुल चोरी हो चुके हैं इसके हवाले से कोई इकदाम किए जाएँ और चोरों को पकड़ कर जो है इनसे रिकवरी करवा कर जो है वो दोबारा जो है वो तारें भी लगवाई जाएँ। जी बहुत शुक्रिया अहमद खान आप हमें अपडेट कर रहे थे।